Can we do it in any language? Yeah. Sir, 50 years is a long time. It's 50 years of glorious moments for Filmfare. When was the first time you remember your association with Filmfare? When was the first time you featured on Filmfare? How did it feel when your picture was on Filmfare? I can't remember when I was in Filmfare, but I came to join the film industry in 1969, and I think one of the initial years I paid a visit to their office because I knew some of my father's friends worked with Times of India, particularly in the Hindi section. Dr. Dharamvir Bharti, who used to edit Dharamyug, and then met a lot of people in Filmfare. And then gradually, as work progressed and I started getting some films, reportage about that used to appear in Filmfare. Abhishek and you are being featured for this is their special edition, and both of you are coming together. It's actually a very nice moment for all your fans to see the two of you together on the cover page. What would you want to say on this special occasion for Filmfare, and obviously as a son and father, again you're together, it's always a pleasure. It's wonderful. It is actually a photograph from Kabhi Alvida Na Kehna, which Dharma Productions was very gracious to give to Filmfare. It's always a pleasure to work with Dad, and to be on the cover with him is that much more special. अभिषेक आप तो यंग हैं, आप अभी फिल्मफेयर में आपके कुछ कम साल हुए हैं, तो ये बताइए आपको कुछ याद है जब पहली बार जब आपने फीचर किया था एडिशन में? जी नहीं, शायद 2001 में मेरी पहली फोटो छपी थी फिल्मफेयर में, because that's around the time I debuted around 2000. So I don't remember which issue it was, लेकिन मुझे ये याद है कि खालिद मोहम्मद जी फिल्मफेयर के एडिटर थे, उन्होंने और जितेश पिल्ले जो आज के एडिटर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू किया था मेरे साथ. And would both of you remember even slightly when was the first time or initial years when you read Filmfare, avid readers of Filmfare? When I became conscious of Filmfare, and the format was different, its look was different. It was a much longer magazine. Broadsheet. Oh, it's called a broadsheet? I think so. Okay, all right. Not sure. Yeah, it's called a broadsheet. No, it was longer, and it was still a magazine. I think broadsheets are what, Midday and... No, those are tabloids. They're tabloids? Okay. Thank you. And the quality of the paper was not as good as it is now. The publishing is extraordinary now. The photograph, the printing, a lot of finesse, a lot of class now. Can compare itself to any of the modern magazines that come out in the West. They have, I think, the finest technology going into the printing and everything. The content itself, I think earlier on there was a lot more curiosity about film stars than there is now. Now there are so many mediums, you have 15 of them here already reporting about this event. So I think people get to see their artists live and talking more often now than they did at that time. So every little bit of information that came out in these magazines was very valuable. It was very minutely read. Also the fact that it was, I think, a monthly magazine, so you had to wait for a month before news came out. There was an anticipation, wait for it. But now, by the time we finish this interview, it's going to be all over the country. So I think it's become a lot more competitive, and it's wonderful to see that despite the competition from the electronic media, the print media still holds sway and continues to prosper. And we still want to look out for the magazine and still want to see photographs and read what comes out in print. So we wish Filmfare all the very best on this anniversary issue, and hope that it continues to succeed and prosper in the years to come. Sir, आपको और अभिषेक को साथ देखना हमेशा हम सब के लिए it's very nice feeling आपके fans. आपके लिए अच्छा है, हम ये चाहेंगे कि जितने दर्शक हैं उनको भी अच्छा लगे. जी, आप क्या कहेंगे हमारे फिल्मफेयर के कवर के बारे में, क्या कहेंगे जो आप दोनों के साथ हैं? देखिए, पिता के लिए तो ये बड़े गर्व की बात होती है जब पुत्र साथ में हो. एक ही व्यवसाय में हम लोग काम कर रहे हैं, दोनों साथ साथ हैं, और हमारी दोनों की तस्वीर छपे और एक ही वजह से छपे, तो ये एक पिता के लिए बड़े गर्व की बात होती है. और मुझे बड़ा गर्व है कि मेरे साथ अभिषेक खड़े. मैगजीन गए, किसी भी प्रिंट मीडियम
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कितना बड़ा हाथ आपका होता है? अगर आप कलाकार हैं तो और अगर आप में कला क्षमता है तो कोई मैगज़ीन आपको बना नहीं सकती और ना ही कोई मैगज़ीन आपको गिरा सकती। ये तो दर्शक तय करते हैं कि उनको क्या अच्छा लगता है। तो मैगज़ीन का अपना एक महत्व है, वो उनका काम है कि वो हमारे बारे में लिखें, चर्चा करें, तस्वीरें छापें। कई बार तस्वीरों को देख करके आप लोग आकर्षित होते हैं और उन्हीं की वजह से शायद वो सिनेमाघरों में जाते हैं। लेकिन यदि आपका फिल्म में काम अच्छा नहीं होगा तो कितनी भी आप फ़ोटो छपवा लीजिए, आपको कुछ नहीं होने वाला है। साथ ही साथ अगर आपने काम अच्छा किया है और यदि कोई पत्रकार या कोई अखबार आपको नीचे गिराना चाहे तो वो आपको गिरा नहीं सकेगा, क्योंकि दर्शक जो हैं वो तय करते हैं कि उन्हें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। Mr. Bachchan, in the magazines, in the film fairs, when you were growing up, and would you constantly keep an eye on what's there in film fair about? No, unfortunately, my schooling was abroad, and we never really read any magazines of the sort when we got back. So I don't remember reading anything about that. Would you come back on holidays and vacations and just go through the glosses and just see pictures? No, unfortunately, there weren't any at home either. As children, we weren't allowed to read them. My parents stressed that we read different kinds of literature apart from magazines when we came back from holidays. So unfortunately, we didn't get to read them. No. Abhishek, in India, everybody knows what your father does, but how he does it, can you tell us, please? Because he's there everywhere from last, I'm 20 years, I've been watching him, since I was born. But how he does it? As a son, you know. I think he wakes up in the morning and he gets out of bed and then he goes to work, right? Yeah, It's quite simple. just simple as that. Any more questions? अभिषेक, जब आपने कवर देखा होगा तो आपको कैसा लगा? आप अपने फादर के साथ खड़े हैं, किस तरह की अमित जी को बता दिया। जी देखिए, जो फोटो है काफ़ी पुरानी है actually. It was taken in March. I don't know. In this very room actually. Yeah, right here. Right here. Actually, yes. So it's great fun. I think it's a wonderful photograph and I'm glad that Filmfare has it as a cover. I think it's a really nice photo. फिल्मफेयर का कोई खास एलिमेंट जो आपको लगता है पिछले 50 सालों में बिल्कुल नहीं बदला है? जहाँ तक मेरी याददाश्त जाती है, जो मैगज़ीन्स थी जिस ज़माने से फिल्में शुरू हुई, उनका काम था कि दर्शकों को सूचित करें कि फिल्म इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। उस समय शायद जितनी डिटेलिंग आज की जाती है, कौन कहाँ गया, क्या कपड़ा पहना, किससे मिल रहा है, किसके साथ दोस्ती है, ये सब चीज़ें शायद नहीं थी। 70 के दरमियान शायद बहुत सी ऐसी मैगज़ीन्स आए जो कि जिन्होंने गॉसिप के ऊपर ज़्यादा महत्व दिया और वो भी काफ़ी प्रचलित हुई, क्योंकि आम जनता जो है वो जानना चाहती है कि क्या गॉसिप चल रहा है उनके निजी जीवन में, कलाकारों के निजी जीवन में। और ये हमेशा से एक आकर्षण रहा है लोगों के मन में कि केवल उनके काम के साथ जो संबंधित चीज़ें हैं उन्हीं को न देखें, बल्कि और भी क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किसके साथ घूमते हैं, कहाँ जाते हैं, कौन सी गाड़ी चलाते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं, इन चीज़ों पे अब ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। और हम उसे कैसे रोक सकते हैं या हमें उसमें कोई लेना देना है नहीं। ये एक मैगज़ीन का एक तौर तरीका है, वो किस तरह से अपना व्यवसाय करे, किस तरह से उसे सजाए। हम भी अपने फिल्मों को जब सजाते हैं तो उसमें कहानियाँ बनाते हैं, किरदार को बनाते हैं, क्या वो कपड़े पहनेंगे, इस तरह एक मैगज़ीन उसको अपने आप को बेचना है, इसलिए वो भी खूबसूरती से सजाती है अपने आप को। इसी तरह मैं समझता हूँ कि काफ़ी अंतर रहा है पिछले सालों में और आजकल के आधुनिक वर्षों में जब फिल्म मैगज़ीन्स या कोई भी फिल्म से संबंधित मैगज़ीन निकलती है। जैसे आपने कहा कि मैगजीन्स में छोटी बड़ी बातें सेलिब्रिटीज आ जाती हैं, तो फिल्मफेयर में सपोज एक इशू में और बाकी मैगजीन्स में खबर थी कि कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान जब आपके साथ हादसा हुआ, उसके बाद बैंगलोर में आप एडमिट थे, एक जूली नाम की नर्स ने काफ़ी सेवा की। पर्सनली कहते हैं अगर आप उस पर सेहत में उभर पाए दोबारा तो उनका बड़ा हाथ था, खुद वो उसी फेज से गुजर रही हैं एंड देयर इज नेवर टू हेल्प। क्या So this is for you and Abhishek both. Vidya Balan and Preeti Zinta both in the edition have mentioned both of you and the men they love. What would you want to say about They mentioned several other men also, so please Along don't with them. just zero in on us. You haven't read it. Both of you together. They've written 20 other names, so this is false. But we love them anyway. They're Yeah, very yeah, they're nice people. They're nice, We like basically them. nice girls.
Alright, जैसे आप कह रहे थे एक सवाल है, जैसे आप कह रहे थे कि मीडिया आज काफी बढ़ा चढ़ा के देखती है हर चीज को। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि बड़ा चढ़ा के बातें करती। लेकिन आप कितना रिलेशनशिप दोनों मीडिया एंड सेलिब्रिटीज के बीच में जो रिश्ता होता है, जहाँ जहाँ सेलिब्रिटी होगा विश्व भर में, वहाँ मीडिया होगा। आप मतलब दोनों के रिश्तों को कैसे मानते हैं, किस तरह से देखते हैं, एक रिलेशनशिप कैसे देखते हैं मीडिया एंड सेलिब्रिटीज के बीच में? इनसे न ज़्यादा मोहब्बत अच्छी, न ज़्यादा दुश्मनी अच्छी। और अभिषेक से अलग सवाल है, धूम 2 रिलीज हो रही है। हाँ धूम 2 रिलीज हो रही है, जी। एक्साइटेड हैं आप अभिषेक के किरदार को ग्राफिक्स में, तो अभिषेक काफी एक्साइटेड हैं देखने के, आप कितने एक्साइटेड हैं? मैं भी उतना ही एक्साइटेड हूँ जितनी आप हैं और जितनी देश की जनता है। इनकी प्रत्येक फिल्म के लिए मैं एक्साइटेड रहता हूँ। मेरे पुत्र हैं। किस तरह का एप्रिशिएशन होता है अभिषेक के लिए? अब ये देखेंगे के बाद ही पता चलेगा, अभी कैसे बता दें। नहीं, बाकी फिल्मों को लेकर आपने देखा होगा तो कितने हाँ, चेंजेस मैं कई बार इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूँ और फिर दोहराई देता हूँ अगर आप चाहती हैं। अब पहली बात तो ये है कि जया और मैंने अभिषेक के लिए कोई ख़ास नहीं किया। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि अगर किसी कलाकार का पुत्र है तो उसके लिए वो एक प्रोडक्शन या स्पेशल फिल्म एक लॉन्च करते हैं। हमने ऐसा कुछ किया नहीं, हमें इतनी क्षमता नहीं थी, हमारे पास साधन नहीं थे कि हम ये कर सकें। और इसलिए हमें बड़ा गर्व है कि अभिषेक ने जब तय किया कि वो एक कलाकार बनना चाहता है तो ये उसका स्वयं अपना निजी निर्णय था और उस निर्णय को लेकर के इन्होंने कदम रखे और कुछ लड़खड़ाए, कुछ डगमगाए। अभी भी कभी कभी लड़खड़ाते हैं, डगमगाते हैं, लेकिन ये आम तौर तरीका है फिल्मों का। कुछ अच्छी जाती हैं, कुछ ख़राब जाती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होनी चाहिए कि आपकी लगन और आप में जो तन्मयता है, जो क्षमता है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है या नहीं। मैं ऐसा मानता हूँ कि अभिषेक प्रत्येक फिल्म में कुछ न कुछ तरक्की करते हैं। वो भले ही छोटी सी हो, लेकिन एक छोटा सा कदम वो आगे लेते हैं। इस बात से हम खुश हैं। अभी बहुत लंबा सफ़र है इनके सामने और बहुत ज़मीन इनको तय करनी है। हम प्रत्येक कदम ये जो उठाते हैं उसमें हमारी शुभकामनाएं हैं, हमारा आशीर्वाद है, हमारा स्नेह है और हमारा प्यार है और हम इनके पीछे खड़े हैं। अभिषेक ने एक बार ये कहा कि पिता तो मेरे साथ में गुरु भी हैं, तो एक गुरु दक्षिणा के रूप में किस तरह की? नहीं, मैं इनको अपना मित्र मानता हूँ और मैंने When तय did I कर say this? गुरु है आप, फादर। When did I say this? मैंने पहले ही तय कर लिया था कि यदि मेरा पुत्र हुआ तो मैं उसके साथ एक पिता पुत्र में एक मित्र का रिश्ता रखूँ और मैं ऐसा मानना चाहूँगा कि हम लोग दोनों मित्र हैं। अभिषेक, जी मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, ये मेरे गुरु हैं और मेरे मित्र भी हैं, दोनों एक साथ हैं। और जैसे ही आप यहाँ से हमें छोड़ेंगे तो हम जाकर के साथ में खाना खाएंगे। If you allow us. Thank you so much. Thank you. Thanks, Abhishek. Thank you so much.